Hello, dear all. How are you? Today we discuss the remaining important questions regarding the IWRPM oral in the SPPU. Okay, let's start now. See the NWRC. That means its long form is the National Water Resource Council that was held in 10th March 1983. Okay, after that we'll start the National Water Policy. The National Water Policy is formed 1987. Okay, after 1987 the National Water Policy was revised in 2002 due to the some challenges regarding the water, so that this policy was revised. Some additional regarding the water as well as the irrigation purpose of view, the points are added in this policy, so that this policy was revised. After that the water policy is revised in 2012. Due to 2012 it was revised because of the climatic changes as well as the pollution regarding problems are included in that policy, so that it was revised. Okay, this one is the most important questions regarding your oral as well as your career point of view as well as your theory question point of view. Okay, then next the concept of NWP, that means the National Water Policy. See, what are the concept? First one is the first of all you have to prepare the framework regarding the water, then uses of water. After that the climate changes. Climate changes is the most important part in the IWRPM, because of the climate is totally changes. There are the three main seasons. कौन से seasons है? Rainy season, winter season and समर सीजन. बट नाउ ऑनवर्ड्स क्या हुआ है, सब जो कुछ हमारे सीजन्स है वो चेंज हो गए. कौन से भी मंथ में बारिश हो रही है, कौन से भी मंथ में धूप हो रही है, सो दैट द क्लाइमेट चेंजेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस नेशनल वाटर पॉलिसी. देन आफ्टर दैट द वाटर यूजर्स इफिशियंसी, मतलब कितने अमाउंट ऑफ वाटर किसको चाहिए, इट विल बी find out and it will be managed in this policy. Then water pricing, what are the pricing of water? We are paying for the water, we are not paying for the water, we are paying for the services that are the providing for the water. हम water के पे नहीं कर रहे क्योंकि water is natural resource and natural resources कौन से है? Rain, lake, river, well and underground water. These are the natural resources है. हम उसके पे नहीं कर रहे, हम we are paying for the services that are the providing for the water. Okay, then project and the planning as well as the management of dot and फ्लड एरिया. जहाँ पे बहुत बारिश होगी एट दैट, वहाँ पे क्या होगा? फ्लड सिचुएशन क्रिएट होगी. और जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे क्या होगा? डॉट एरिया क्रिएट होगा. ओके, नेक्स्ट क्या है? वाटर सप्लाई एंड द सैनिटेशन. इसको भी प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए. देन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है. ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फार्मर्स होते हैं. कौन से फार्मर्स होते हैं कि वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट दिस पॉलिसी वॉज अरेंज्ड. देन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एज वेल एज वाटर सप्लाई एंड द ट्रांसपोर्टरी रिवर. okay, it will be also provided. Then next, what is the main principle of this NWP? That means the National Water Policy. Main principle is that to provide planning, development and management regarding the water. Okay, after that क्या करना है? उसको क्या करना है? जो इकोलॉजिकल नीड्स है उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, उसका कंसिडरेशन करना चाहिए. आफ्टर दैट क्या करना चाहिए? तो मिनिमाइज इकोलॉजिकल सिस्टम करने के बाद क्या हो करना चाहिए? उसका कंसिडरेशन करना चाहिए. एंड डिमांड मैनेजमेंट, जिसको जितना डिमांड है उतना वाटर तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एज पर देयर डिमांड वी विल रिक्वायर फॉर लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो देयर. ओके, दिस इज द रिगार्डिंग ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी question answers. Then next, PIM, that means the participatory irrigation management. ओरल के टाइम हर वक्त पूछते रहते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द PIM. PIM दैट मीन्स द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट. पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट
जो स्टेक होल्डर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, देन सेकंड कौन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, देन थर्ड क्या होता है, थर्ड इंटरनेशनली जो कुछ ऑथराइज पर्सन है वो इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर दैट द हम हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फार्मर, इन सब का पार्टिसिपेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एज पर देयर स्टेजेस the irrigation was developed and their operation and maintenance will be implemented in this system, PIM system. Okay, then in April 1987 the primary primarily क्या हुआ है, द फार्मर्स हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द PIM सिस्टम। आफ्टर दैट क्या हुआ है, द इश्यूज रिगार्डिंग फार्मर्स दे हैव टू डू द स्टडी ऑन दैट। देन एक्ट कब फॉर्म हुआ है, द लीगल नीड्स एंड देयर फ्रेमवर्क कब फॉर्म हुआ है, द मॉडल वॉज 1998 was adopted. After that, according to 1998, the Maharashtra has enhanced the irrigation management system for the farmer. फार्मर साठी एक्ट क्या हुआ है, 2005 में फिर से एक्ट फॉर्म हुआ है। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ है, WUA का लॉन्ग फॉर्म भी बहुत बार पूछा रहता है, दैट मीन्स वाटर यूजर्स एसोसिएशन। WUA दैट मीन्स वाटर यूजर्स एसोसिएशन। एंड रिगार्डिंग वाटर यूजर्स एसोसिएशन, they the covering the area of 6.67 lakh hectare area covered by the WUA. नेक्स्ट PIM नेसेसिटी, क्या है PIM की नेसेसिटी, फर्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, देन फिजिकल अवेबिलिटी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, एंड O&M दैट मीन्स द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट एज वेल एज रिकवरी रिगार्डिंग द इरिगेशन एंड अदर कंपल्शंस। अदर कंपल्शन में क्या होगा, like drinking water, like fisheries, like hydropower plants, regarding that the providing waters. Then next the objectives. Objectives क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट, क्या करना है, टू क्रिएट द ओनरशिप ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड द इरिगेशन सिस्टम अमंग द यूजर्स। ओके, यूजर्स के साथ क्या करना है, हमें ओनरशिप क्रिएट करना है वाटर रिलेटेड एंड वाटर सिस्टम रिगार्डिंग। देन सेकंड क्या है, टू इम्प्रूव द सर्विसेज, क्या करना है, सर्विसेज इम्प्रूव करना है, उसका क्या करना है, O&M करना है, दैट मीन्स ऑपरेशन एंड रिसर्च करना है। दैट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PIM. देन WDS का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, WDS दैट मीन्स द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटीज, उसको हम क्या कहते हैं, WDS को ही हम कह सकते हैं WUA दैट मीन्स द वाटर यूजर्स एसोसिएशन। ओके, उसका क्या स्कोप है, WUA का स्कोप क्या है, टू सप्लाई वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमंग ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ओके, देन सेकंड क्या है, टू मेंटेन द इरिगेशन। ओके, then development also, systematic and scientific development we have to provide. Then after क्या है, the supply and water distribution systematically and effectively होना चाहिए। then next क्या है, coordination होना चाहिए, recovery of water as well as the